ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 So we are reading from Shrimad Bhagavatam, first canto, 10th chapter, verse number 27. So we'll do a quick recap. What's happening is Bhagavan Shri Krishna is wants to leave, is going back from Hastinapur to Mathura, and everybody was sad. Then Krishna said, "No, no, I have to go now." This discussion is happening between all the women in Hastinapur in the terrace. Chat pe khade hoke they're talking about this, and Krishna Katha is going on. You know. Um, so right now, um, let's see what's happening. What are they saying now? अहो वत्स्वर्षशस्तिस्करी कुशल स्थली पुण्यशस्करी भुव पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेशितं स्मितास्वलोकं स्वपित् स्वं यत्प्रजा अहो वत्स्वर्यस्य शशस्तिस्करी कुशलस्थली पुण्य यशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेशितं स्मितावलोकं स्वपतिं सं यत्प्रजः. Undoubtedly, it is wonderful that Dwarka has defeated the glories of heavenly planets and has enhanced the celebrity of the earth. The inhabitants of Dwarkas are always seeing the soul of all living beings, Krishna, in his loving feature. He glances at them and favors them with his sweet smiles. So what's happening is, Hare Krishna Mitul Prabhu, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हाँ कृष्णा वापस प्रभु। आ गए. हाँ प्रभु जी, मैं सैटरडे को आ गया वापस। अच्छा सैटरडे को वापस आ गए. हाउ इज योर हम्म। डॉटर नाउ? हाँ, वो सही है अभी। ओके ओके. वेरी हाँ, नाइस. गुड टू सी यू 3 दिन। प्रभु. हाँ, मुझे भी अच्छा लगा। मैंने सोचा चलो आज मंडे है, हाँ क्लास से वेरी. हो जाती है। अकेला ही हूँ और वो लोग नहीं आए, वो लोग अभी भी अच्छा इंडिया में ही हैं। अच्छा. ठीक तो है. उनको भी शांति में रहने दो थोड़ा. आप भी रह लो थोड़ा शांति में. नहीं, वेरी नाइस टू सी यू प्रभु. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू प्रभु जी, अच्छा मिस्ड लगा यू. आपको। वी मिस्ड यू. डेफिनेटली प्रभु जी, मुझे भी। मेलबर्न का, वहां पे प्रभु जी इंडिया में भक्ति करना बहुत मुश्किल है, वो तो मैंने देख लिया। आई डेफिनेटली एग्री विद दैट. एक्चुअली 100% एग्री विद दैट. वहाँ का वहाँ- माहौल और यहाँ के माहौल में जमीन आसमान का अंतर है एक्चुअली. हाँ, That's सही है। why Srila Prabhupada actually said once that Melbourne Mahaprabhu Mandir is non-different to Golok Vrindavan. हम्म। So and because यहाँ का जो congregation है ना, it's very very highly elevated. मैंने देखा ना, I've met with some of the devotees in Ajmer like in India. I mean they're really हम्म। nice, but यहाँ का जो standard है, it's very very high by the way. So we are very हम्म। lucky. मेरे पापा भी बोलते हैं कि मेलबर्न जैसा जगह नहीं Congregation, है, हाँ. कांग्रेगेशन तो इतनी अच्छी है ना। वो बोलते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, वो भी उनको हाँ उनको भी लग रहा है कि वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, सी अंकल को लग रहा है वहाँ पर. हाँ, वो यहाँ पे आके गए ना, तो I उन्होंने know, I देखा know, I तो। know. Ah, very. हम्म। Anyway, okay. So let's go get back to this. So what happened is, now all the women they're talking. They're talking about Krishna, and everything they're saying is actually Krishna Katha. So they are doing devotional service right now. And the beauty about this is these women, they're not scholars, they're not very highly elevated, they are not Vedon ke Gyata and all those sort of things, but they are very, very pious women who are in love with Krishna, and they love him and they have no other agenda than to glorify. When they glorify Krishna, they have no agenda. Like sometimes we glorify people because we have some agenda. कुछ ना कुछ agenda होता है. If we say something nice about them, like sometimes we say nice thing just for no reason, but most of the time we say nice thing because there is agenda. कई बार ये एजेंडा होता है कि यू वांट टू प्लीज समवन एल्स so that like they can be in a better mood, or which is a good thing, like they can become in a better mood kind of stuff. But here they are not doing this because they want Krishna to be in a better mood. They're actually doing this because they want to make sure that whatever is happening in their life is happening um,
happening to, they are actually taking it towards Krishna, and that's what's happening in here. So here Krishna is actually talking about the heavenly planets. Um, Undoubtedly, it is wonderful that Dwarka has defeated the glories of heavenly planets and has enhanced the celebrity of the earth. Now, in this purport, what Srila Prabhupada is trying to get at, that's important. Now, what happens is, um, what are they talking about? They're talking about Mathura and inhabitants of Dwarka. है ना? वो they are talking about inhabitants of Dwarka. अब inhabitants of Dwarka हैं कौन? What they are saying is they are one of the most luckiest people because they are always seeing the soul of all living beings. They are seeing Krishna face to face. In which feature? In his loving feature. अब कोई बोलेगा what other features Krishna has? है ना? One of the thing that Krishna is called is Kalosmi. भगवान कहते हैं काल, मतलब that means time, I am, है ना? So time in material world is all devouring, है ना? Time is diminishing everything, है ना? जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, हमारे हमारे सेल्स हमारे सेल्स का जो डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, वो डिफरेंट होता जा रहा है. Every time the time is passing, everything is actually going to one day dwindle, है ना? So कई बार काल को इसलिए बोला गया है, काल का ग्रास, ग्रास का मतलब होता है काल के मुंह में जाना, है ना? लेकिन यहाँ पर कृष्णा when they are looking, when the Dwarkavasi are looking at him, looking at his loving feature, है ना? Now because they are looking at him in his loving feature, what he is doing, he glances at them and favors them with sweet smiles. आई एम नॉट टू श्योर आप लोगों ने, देर इज ए क्लास, अर्जुन सखा प्रभु ने क्लास दी थी एक दो दिन पहले मंदिर में. प्लीज लिसन टू दैट क्लास. इट टॉक्स अबाउट why whether Bhagwan is partial or impartial. The whole class was about that God ओके is प्रभु। Har, Har, Hare Krishna, Hare Krishna, आंटी जी हरे कृष्णा. हाँ जी, हरे हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा. सो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, मतलब उस क्लास में अर्जुन सखा प्रभु बता रहे थे कि गॉड कृष्णा इज अन ही इज एक्चुअली impartial, है ना? बट ही इज एक्चुअली impartially partial. दैट मीन्स वो बताते हैं कि मैं भक्तों का अहम भक्त पराधीना, है ना? मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ. लेकिन वो ये भी बताते हैं कि मैंने when the rain falls on devotee and non-devotee equally, है ना? Air is said distributed to devotee and non-devotee equally, है ना? The choice to accept Krishna and not to accept Krishna is equal to everyone. सबके पास equal है. So there is no partiality in it. ठीक है? So the opportunity to actually go closer to Krishna is free for everyone. Anyone and everyone will be able to get into the uh, anyone and everyone will be able to get into this. किसी के लिए कोई वो नहीं है. लेकिन यहाँ पर देखो कि he is looking at them with a sweet smiles, है ना? Now let's see what Srila Prabhupada is in the purport. कौन पढ़ेगा purport? Anybody wants to read it? ये प्रभु जी, I can read. Yeah, please. Um, the heavenly planets are inhabited by demigods like Indra, Chandra, Varun, and Vayu, and the pious souls reach there after performance of many virtuous act on the earth. Modern scientists are agreed that the timing arrangement in the higher planetary system is different from the act on the earth. Modern scientists are agreed that the timing arrangement in higher planetary system is different, okay, different from that of the earth. Thus it is understood from the revealed scripture that the duration of the life, there is a 10,000 years by the calculations. 6 months on the earth is equal to 1 day on the heavenly planets. Facilities of the enjoyment are also similarly enhanced, and the beauties of the inhabitants is legendary. Common men on the earth are very much fond of reaching the heavenly planets because they have heard the comfort of life are far greater there than on the earth. They are now trying to reach the moon by spacecraft. Considering all this, the heavenly planets are more celebrated than the earth, but the celebrity on the earth has defeated that
of one of the heavenly planets because of Dwarka, where Lord Sri Krishna reigned as a king. Three places, namely Vrindavan, Mathura, and Dwarka, are more important than the famous planet within the universe. These places are perpetually sanctified because whenever the Lord descend on the earth, he display his transcendental activities, particularly in these three places. They are perpetually the holy lands of the Lord, and the inhabitants still take advantage of the holy places even though the Lord is now out of their sight. The Lord is the soul of all living beings, and He desires always to have all the living beings in their Swarupa, in their constitutional position, to participate in transcendental life in His association. His attractive features and sweet smiling smiles go deep dive into the heart of everyone, and once it is so done, the living beings is admitted into the kingdom of God, from which no one returns. This is confirmed in Bhagavad Gita. The heavenly planets may be very famous for offering better facilities of material enjoyment, but as we learned from the Bhagavad Gita 9:20-21, one has to come back again to the earth planet as soon as the as soon as the acquired virtue is finished. Dwarka is certainly more important than the heavenly planets because whoever has been favored with the smiling glance of the Lord shall never come back again to this rotten earth, which is certified by the Lord Himself as a place of misery. Not only this earth, but also all the planets of the universe are places of misery because is none of the planets within the universe is there eternal life, eternal bliss, and eternal knowledge. Any person engaged in the devotional service of the Lord is recommended to live in one of the above mentioned three places, namely Dwarka, Mathura, or Vrindavan, because devotional service in these three places is magnified. Those who go there to follow the principle in terms of instruction imparted in the revealed scripture surely achieve the same result as obtained during the presence of Lord Sri Krishna. His abode and he himself are identical, and a pure devotee under the guidance of another experienced devotee can obtain all the results even at present. Thank you. Hare Hare Krishna. Krishna. Beautiful. What a beautiful purport. Now, जहां पर शिला देखो, लोग, दीज विमेन दे आर टॉकिंग अबाउट भगवान श्री कृष्ण के, कि भाई ये वो द्वारका में रहते हैं एंड ही इज ऑलवेज, एंड दे दीज हैबिटेंट्स आर सो लकी। शिला प्रभुपाद ने उसको क्या वो दिया है कि व्हाट डू वी कंसीडर एज लकी? वी कंसीडर गोइंग टू हेवनली प्लैनेट्स आर लकी। क्योंकि हम लोगों को क्या आशीर्वाद देते हैं, यू नो हम लोग क्या बोलते हैं कि यार व्हाट हैपेंड टू योर फैमिली मेंबर, उनका स्वर्गवास हो गया है, as if it's a very big thing, you know. Then we'll see that these demigods like Indra, Chandra, Varun, Vayu, they're very pious, you know. They've done many pious activities so that they can go to, heavenly planet. But the thing is, ultimately, heavenly planets are nothing as compared to Dwarika, Mathura and Vrindavan. उसका रीजन है, अभी शिला प्रभुपाद इसमें बताते हैं कि जो हेवनली प्लैनेट्स हैं, दीज आर एक्चुअली, ये वाले सारे के सारे प्लैनेट, दे आर एक्चुअली नॉट परमानेंट, दे आर ऑल टेम्परेरी। एंड दैट इज द रीजन व्हाई द्वारिका, मथुरा एंड वृंदावन, दे आर इटर्नल। ठीक है, यहाँ पर जमीन पे तो खैर हमारे हमें लगता है कि देर प्लेसेस ऑन ऑन द अर्थ, बट दे आर एक्चुअली प्लैनेट्स। द्वारका, देर इज ए द्वारका प्लैनेट, देर इज ए वृंदावन, गोलोक वृंदावन इज द हाईएस्ट प्लैनेट, है ना। और तो एक्चुअली क्या है, हर एक जगह पर कृष्णा स्टेज एज ए डिफरेंट मूड, है ना। द्वारका में और मथुरा में कृष्णा इज लाइक ए क्षत्रिय किंग, है ना। बट वृंदावन में कृष्णा इज लाइक ए काउ हर्ड बॉय, है ना। और शिला प्रभुपाद इसमें आगे बताएंगे नेक्स्ट वाले श्लोक में कि कैसे भगवान रहते हैं अलग अलग जगह पर। बट यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वी नो दैट हेवनली प्लैनेट्स में जो टाइम है वो हमारे प्लैनेट से डिफरेंट है। अब कोई बोलेगा, व्हाट इज द, व्हाई इज हेवनली प्लैनेट सो पॉपुलर? क्यों है, व्हाट इज द, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हेवनली प्लैनेट? सबसे मतलब बेनिफिट्स तो है, बेनिफिट्स देखते हैं फिर देखते हैं नुकसान क्या है। ठीक है, बेनिफिट ये है कि वहाँ की जो लाइफ है यहाँ की लाइफ से थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स ज्यादा है।
या वहाँ का एक दिन यहाँ के 6 मंथ्स के बराबर है। ठीक है। यहाँ के 6 मंथ्स निकलते हैं तो वहाँ एक दिन होता है, 6 मंथ्स और निकलते हैं तो वहाँ पर रात होती है ना। तो अब कोई बोलेगा दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज ऑल रबिश, लेकिन अभी तो हम लोगों को पता ही है। आई डोंट नो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यू नो जहां पर अरे अलग अलग जगह पर जितना ग्रेविटेशनल पुल होता है, जितना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल होता है, उतना ही टाइम स्लो हो जाता है ना। अब कहते हैं ब्लैक ब्लैक होल के पास, जैसे एक यहाँ से हमने सपोज सपोज मैंने एक बॉल फेंकी, वो ब्लैक होल में जा रही है। तो यहाँ से ब्लैक होल तक पहुंचने में पहले तो उसको बहुत देर लगेगी, लेकिन जैसे जैसे वो नजदीक जाती जाएगी जैसे वैसे और तेज होती जाएगी वो। तो मुझे सपोज मेरे को लगा कि ये 3 मिनट लगे उसको ब्लैक होल में घुसने में। लेकिन अगर उस बॉल के ऊपर कोई बैठा है, सपोज एक इंसान बैठा है, वो जब उसके पेरीफेरी में पहुंचेगा, ब्लैक होल की पेरीफेरी में पहुंचेगा, तो उसको पेरीफेरी से ब्लैक होल को टच करने में इटर्निटी वाला टाइम लगता है। लेकिन हमें क्या लगता है, अरे तो 3 मिनट में खत्म हो गया। तो वहां का जो इटर्निटी है हमारा 3 मिनट है बस, है ना। सो इसीलिए कहते हैं जहाँ अलग अलग प्लानिटरी सिस्टम में, हमारी साइंस भी बोलती है, डिपेंड करता है वो प्लानट कितना बड़ा है और उसमें उसका ग्रेविटेशनल पुल कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, उससे पता पता चलता है कि उसमें जो टाइम है वो कैसे बिहेव करेगा। अलग अलग यूनिवर्सल बॉडीज के लिए अलग अलग टाइम बताया गया है। और हमारे शास्त्रों में तो बड़ी क्लियरली बताया है कि टाइम इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लैनेट्स। हम लोगों को ये जो टाइम और स्पेस का जो डिफरेंस है, ये ओनली अराउंड 80-90 ईयर्स पहले पता चला है ना। वो भी प्रूव नहीं था, अब प्रूव हो गया है। लेकिन हमारे शास्त्रों में तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर से लिखा हुआ है कि भाई अलग अलग ग्रहों में अलग अलग टाइम जाता है ना। अब शिला प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं कि एक तो ये डिफरेंस है कि वहाँ हेवनली प्लेनेट में क्या है, उम्र बहुत लंबी होती है। ठीक है, एक तो ये फायदा हो गया, सो कॉल्ड फायदा। दूसरा क्या फायदा है कि वहाँ की जो ब्यूटी है वो यहाँ की ब्यूटी के मुकाबले अनकंपेरेबल है। कहते हैं कि अगर उर्वशी और मेनका हम लोगों के सामने आ जाए, तो हम लोग वी विल स्टॉप ब्रीदिंग, मतलब वी विल गो अनकॉन्शियस स्ट्रेट अवे। मतलब वो हेवनली ब्यूटी ऐसी है कि आर सेंसेस कैन नॉट हैंडल इट। नॉट जस्ट मेन, ऑल द विमेन, एनीवन सीज दोज अप्सराज, वी विल फेंट स्ट्रेट अवे, है ना। फिर ये तो सिर्फ अप्सराओं की बात है, भूल जाओ अगर कृष्णा आ जाए सामने तो क्या हो जाए, है ना, और राधा रानी आ जाए तो क्या हो जाए, वी हैव नो आइडिया। ठीक है। लेकिन सिर्फ हेवनली इतनी ब्यूटी है वहां पर। और वहाँ की जो, जैसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ना कि आई वांट टू बाय अ हाउस, सी फेसिंग हो, हिल हिल साइड, हिल टॉप दिखना चाहिए उससे। ओ लुक एट, मेरे मेरे इधर से हिमालय दिखता है, आई गॉट अ ब्यूटीफुल हाउस, एंड जगन्नाथ राम प्रभु वन डे ही वाज सेइंग दैट वन डे दे वेंट टू न्यूजीलैंड, और जब न्यूजीलैंड में प्लेन लैंड हो रहा था, इट इज एब्सोल्युटली स्टनिंग, है ना। आई बीन टू न्यूजीलैंड, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एंड ही वॉज थिंकिंग, ही उनके दिमाग में क्या आया कि अगर ये न्यूजीलैंड में लैंड करना इतना ब्यूटीफुल है, तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो अर्थ की जो ब्यूटी है ना, वो अम, हम लोग कंपेयर भी नहीं कर सकते स्वर्ग से। मतलब स्वर्ग के मुकाबले दिस इज लाइक गटर। ये जो पृथ्वी है की सुंदरता है, और उसके मुकाबले इट्स नथिंग, है ना, इट्स जीरो। सो उस दिन जगन्नाथ राम प्रभु बता रहे थे अपनी क्लास में, कहते कि यार व्हेन 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 वी फील लाइक ओ लेट्स गो टू यूरोप, लेट्स गो एंड सी वियना, लेट्स गो ऑन दोस गोंडोलास, लेट्स गो एंड स्टैंड ऑन टॉप ऑफ द एफिल टावर, ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो वो कहते हैं, जगन्नाथ राम प्रभु कहते हैं, वी हैव बीन टू स्वर्ग सो मेनी मिलियंस ऑफ टाइम्स ऑलरेडी, है ना, इस जन्म से पहले। यार अब उसके बाद भी अगर तुम एफएल टावर पे ही अटके रहोगे, देन हाउ स्टूपिड इज दैट, आप न्यूजीलैंड में अटके हुए हो, है ना, आप मेरे को तस्मानिया जाना है उसमें अटके हुए हो, गोल्ड कोस्ट में अटके हुए हो, यू वांट टू सी ब्यूटीफुल थिंग। यार वी बीन सीइंग ब्यूटीफुल थिंग्स फॉर इटर्निटी, कम से कम मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम से वी आर सीइंग ऑल दिस ब्यूटीफुल थिंग। अगर हमें लगता है कि हम लोग पहली बार ही कहीं घूमने जा रहे हैं, दैट्स नॉट ट्रू। वी हैव डन दिस हर लाइफ टाइम में हम लोगों ने करा है, एंड फिर भी वी आर सो अट्रैक्टेड।
सो हेवनली प्लेनेट क्या है? हेवनली प्लेनेट में जो लोग होते हैं ना, जैसे हम लोग वॉक करते हैं तो हमें चींटियां दिखती है ना, चींटियां। तो कैसा लगता है, ये चींटी है, वो इतना छोटा सा चीनी का दाना उठा के कितनी मेहनत कर रही है, और सारे लोग घूम घुस घुस के, हमें लगता है कि क्या है यार, देखो ये ना, ये 10 दिन की इनकी लाइफ है, 10 दिन में सब मर जाएंगी, कोई भी नहीं बचेगा। इन सारी चींटियों में 10 दिन में कोई भी नहीं बचने वाला है ना, उनकी उससे ज्यादा लाइफ ही नहीं होती है। हम लोगों को चींटियों को देख के कभी ऐसा नहीं लगता है कि यार चलो मैं इनकी जिंदगी में इंटरेस्ट लेता हूँ। तो जब हेवनली प्लैनेट्स में, स्वर्ग वगैरह में से लोग हम लोगों को देखते हैं, वो हम लोगों को ऐसे ही समझते हैं। बोले देखो ये क्या है, 9 to 5 की जॉब में लगा पड़ा है, एक छोटा सा मॉर्गेज भरने के चक्कर में पूरी लाइफ गधे की तरह लगा हुआ है ना, वो ऐसे ही सोचते हैं। ये देखो क्या है, और ये क्या क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, है ना। जैसे हम लोग नारायण, हम लोग वहाँ गए थे वनबुल कैंपिंग में। तो नारायण वो कैसल बना रहा था, है ना। और इतना ज्यादा घुस के उसमें बना रहा था। शाम होने वाली थी, हम लोगों को जाना था, तो मैंने उसको बोला बेटा चलो चलो चलते हैं। बोले नहीं पापा, पापा मैंने ये कैसल बनाया, इसका क्या होगा। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रोने लग गया, बोले नहीं मेरे को नहीं जाना, मेरे को तो ये साथ में लेके जाना है, मैं तो नहीं जाऊंगा ऐसे। तो मैंने रॉक्सी को बोला, मैंने कहा क्या है यार ये ना 6 साल का हो गया है, हाउ कम ही डजंट अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट ए रियल कैसल, चल यहाँ से। एंड देन उसको थोड़ा समझा बुझा के हम लोग ले गए, ठीक है। while walking I was thinking यार, मैं भी तो यही कर रहा हूँ, है ना। वो जो उसने समुद्र के ऊपर कासल बनाया है, मैंने कैरोलाइन स्प्रिंग में के ऊपर वो छोटा सा अपना कुटिया बनाई है, ठीक है। और वो सोच रहा है कि वो कासल परमानेंट है। बोले मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मेरे को लगता है नहीं, मैं भी कैरोलाइन स्प्रिंग का घर छोड़ के नहीं जाऊंगा। डिफरेंस है कुछ नहीं, लिटरली। लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे नारायण से ज्यादा पता है मेरे बेटे से, तो मेरे को लगता है कि नहीं नहीं आई एम राइट। बट आई एम इन द सेम थिंग, मैं भी उसी ढाक के 3 पात, लाइक ना, उसी में अटका पड़ा हूँ। एंड दिस इज वाई द इस पे, इससे पता चलता है कि जब मैं नारायण को समझा रहा हूँ कि ये जो तू बना रहा है, ये थोड़ा सा मिट्टी में बना रहा है बीच पे, ये सारा बह जाएगा अभी, कुछ नहीं बचेगा इसमें। सेम चीज यहाँ पर, हम लोग इतना जोड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं बचेगा। हमारे बच्चे भले ही हमारा नाम याद रखेंगे, हमारे जो पोते होंगे या पोतियां होंगी, दे वोंट रिमेम्बर नथिंग। हम लोगों के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं होगा, ठीक है। ना तो हमारा नाम रहेगा, ना ही हमारा शरीर रहेगा, ना ही हमारी यादें रहेंगी, कुछ भी नहीं रहेगा, एवरीथिंग विल बी क्लीन स्लेट, है ना। I'm not giving you, making you morose, I'm just giving you the fact, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो हेवनली प्लैनेट्स वाले लोग हैं, वो हम लोगों को ये समझते हैं, ये देखो क्या टेम्परेरी में फंसा पड़ा है, देखो अभी ये अभी हम लोग 4-5 दिन घूम के आएंगे, तब तक ये बुढ़ा होके मर चुका होगा, ऐसे सोचते हैं वो, ये खत्म हो गया होगा, है ना। इसको जैसे हम लोग चींटी को सोचते हैं कि 10 दिन में गायब हो जाएंगी, मर जाएंगी सारी की सारी, उनको भी ऐसे लगता है, बिकॉज दैट्स हाउ उनकी लाइफ बहुत ज्यादा है। लेकिन यू गो वन स्टेप फर्दर, उनकी जो लाइफ स्पैन है, जो इंद्र चंद्र वरुण, इन लोगों की जो लाइफ स्पैन है, वो ब्रह्मा के मुकाबले कुछ भी नहीं है ना। बिकॉज व्हाट ब्रह्मा डज, ब्रह्मा का जो एक दिन होता है, ठीक है, एक दिन जब ब्रह्मा का होता है उसमें एक इंद्र होता है, ठीक है। अम, ठीक है, एक दिन ब्रह्मा के एक दिन में एक इंद्र होता है। अब वो इंद्र सोचता है और मेरी इतनी लंबी लाइफ है, मेरे लाइफ टाइम में ब्रिजेश जैसे मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम निकल जाती हैं, उनको लग रहा है। लेकिन ब्रह्मा सोच रहे हैं कि मैं 360 डेज टाइम्स 100 ईयर्स, है ना। इतने दिन, इतने टाइम, इतने साल में जीता हूँ। और हर साल वो एक नया नया वो आ जाता है ना, इंद्र। तो वो इंदिरा को भी क्या सोचते हैं, ये यार टेम्परेरी, क्या है यार इसका, क्या है टेम्परेरी। अब वो तो छोड़ो, चलो ठीक है। ब्रह्मा ब्रह्मा की लाइफ साइकिल में 72 मनु आते हैं, ठीक है। एक मनु के 72 मनु, नहीं सॉरी, 72 मनु इन 1 डे, ओ ब्रह्मा, ठीक है। और और ये ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा पैदा होते हैं और 100 साल, ब्रह्मा जी के 100 साल के बाद वो भी चले जाते हैं, ठीक है। ये जो ब्रह्मा जी पैदा हुए, वो जो 100 साल हुए, वो महाविष्णु के लिए क्या है पता है? वो सिर्फ उनके लिए एक सांस है, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीद आउट, दैट्स इट। आओ सोचो, भगवान महाविष्णु जब ब्रह्मा को देखते होंगे, बोले यार मैंने सांस छोड़ी, ब्रह्मा पैदा हुआ, मैंने सांस ली, ब्रह्मा खत्म, ब्रह्मा के पूरे 100 साल गए।
ठीक है, उनका ऐसा। अब ब्रह्मा भी सोचते होंगे कि यार मैंने इधर मुड़ के देखा, वापस आया तो 1,000 युग निकल चुके हैं। ठीक है, सदी युगों के जो सर्कल हैं वो इतने सारे निकल गए, है ना। तो एक स्टोरी भी आती है इसमें पुराणों में, जिसमें एक राजा थे, आई कांट रिमेम्बर कहाँ के थे। उन्होंने अपनी बेटी, वो बड़े धर्मात्मा थे, उन्होंने अपनी बेटी के लिए बोला कि मैं ना अपनी बेटी के लिए ब्रह्मा जी से पूछ के उसका वर ढूंढूंगा। तो वो गए ब्रह्मा जी के पास, है ना। उस समय मतलब बहुत पावरफुल किंग थे, राज ऋषि थे, तो अपनी सिद्धि से गए ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक में वो पहुंचे थे, और ब्रह्मा जी कोई नृत्य देख रहे थे, और वो नृत्य खत्म ही हुआ था। तो ब्रह्मा जी ने उनको बोला 1 मिनट रुको। फिर उधर उनको भेजा, और वापस उनके तरफ बोला, हाँ हाउ कैन आई हेल्प यू। तो उन्होंने बोला, मैं अपनी बेटी के लिए लड़का देखने के लिए आपसे पूछने आया हूँ, को प्लीज कोई सुयोग्य वर दिखाइए। तो ब्रह्मा जी ने बोला, भैया तुम 1 मिनट से यहाँ आए हो, 1 मिनट में ना कोई तुम्हारे कुल का कोई बचा ही नहीं है। सब लोग बुढ़े होके मर चुके हैं, आपकी जनरेशन्स टू जनरेशन्स खत्म हो चुकी हैं, अभी तो कोई है ही नहीं। तो उन्होंने बोला, अरे मेरे को तो पता ही नहीं था। तो उन्होंने बोला, हाँ अब तो तुम इतनी देर आए गए यहाँ पर, तो वहां पर सारी जनरेशन खत्म हो चुकी है। तो अब तो बोले, लेकिन मेरी बेटी के लिए प्लीज आप वर ढूंढिए। तो ब्रह्मा जी ने बोला, उस वक्त द्वापर युग चल रहा था, और उस वही युग था जहाँ पर कृष्ण बलराम दोनों थे। तो उन्होंने बोला, देखो अभी तुम्हारी बेटी के लिए एक ही लड़का है जो उससे शादी कर सकता है, वो है बलराम। तो जब वो वापस पृथ्वी पे उनको लेके आए, तो बलराम तो अपने वही ना, जो जो उनकी हाइट थी। तो ये जो लड़की थी, इसकी हाइट थी कम से कम नहीं तो 20 टाइम्स बलराम जी से ज्यादा। क्योंकि पहले के समय पे लोग बहुत लंबे होते थे, फिर धीरे धीरे हाइट छोटी होती गई। कहते हैं कि बाय द टाइम जब कलयुग खत्म होने वाला होगा, हमारी जो 3.5 4 फुट कहीं हमारी हाइट रह जाएगी, मैक्सिमम 3 3.5 4 फुट मैक्सिमम, एक्चुअली उससे भी कम। 1 या 1 फुट के करीब, 1 या 2 फुट के करीब। तो वो जो हाइट कम होती आ रही है, तो फिर बलराम जी ने अपना हल लिया, और उस लड़की के सिर पे टच करा, और फिर उसको अपने साइज का बनाया, देन ही गॉट मैरिड टू हर, है ना। दैट्स एक्चुअली पास टाइम इन आवर, क्या बोलते हैं, पुराण में। Now, why I was saying that is the idea of this purport। शिला प्रभुपाद जब ये बता रहे थे, उनका क्या आइडिया था कि भैया आप ये सोचो कि हम लोग कहाँ पर हैं, और हम लोग कितनी टेम्परेरी लाइफ जी रहे हैं, और उस टेम्परेरी लाइफ में भी हमें लगता है, अरे इसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने मुझे ऐसे बोल दिया। अरे आपको पता है, उसने मेरे बारे में 20 साल पहले ऐसा बोला था। बोले उसको तो पता ही नहीं है भैया उसने क्या बोला था, आप उसको लेके बैठे हो, ठीक है। बोले नहीं, उसने बोला था। अब उस वो बंदे को तो कुछ पता ही नहीं है। अभी एक क्या हुआ, देयर वाज दिस गाय, उसको ना कि उसने ना किसी से लड़ाई करी होगी अपने कॉलेज के समय में, और वो कॉलेज के समय से ट्रॉमा में था कि जब मेरे को ये बंदा मिलेगा मैं उसको बहुत मारूंगा, ठीक है। तो उसने किसी तरीके से पता करा कि बंदा कहाँ है, तो मालूम पड़ा कि वो ओल्ड एज होम में है। तो वो भी बुढ़ा था, वो भी बुढ़ा था, वो बेसबॉल बैट लेके गया अंदर, है ना, कि भाई मैं तो इसको एक मार के निकल जाऊंगा, और ऐसा मारूंगा कि इसकी हड्डी टूटेगी, सिर विर पे नहीं मारूंगा, आई वॉन्ट हिम टू लिव विद दैट पेन, है ना। वो अंदर गया बेसबॉल बैट लेके ऐसे ही, और फिर देखा, फिर किसी ने उसने पता करा कि भाई ये कौन है, कहाँ है वो। बोले वो बंदा बैठा है। तो वो उसके पास जाने लगा, बोले आप कौन हो। तो उसने बोला मैं उसका दोस्त हूँ, ऐसे बोला, है ना, नहीं तो जाने नहीं देंगे। बोले मैं उसका दोस्त हूँ स्कूल का। बोले अब कोई फायदा नहीं है ना, उसको कुछ याद नहीं है, ही गॉट अल्जाइमर्स, कुछ भी नहीं याद है। तो जैसे ही उसको पता चला उसको कुछ भी नहीं याद है, उसका गुस्सा एकदम ठंडा हो गया। देन अगर आप इस स्टोरी को देखो, तो उस बंदे जो इस बंदे के अंदर गुस्सा था उस आदमी के लिए, हुज फॉल्ट वाज इट? इट वाज हिज ओन फॉल्ट। क्योंकि उस जिसने जिसने उसको परेशान करा था उसको तो पता भी नहीं है, और उसको अल्जाइमर हो रखा है। तो जैसे ही उसको पता चला कि ये बंदे, इस बंदे के मन में अब मेरे लिए कुछ नहीं है, तो उसका अपने आप वो ठीक हो गया। तो हमारे साथ क्या है, इस टेम्परेरी लाइफ में भी हम छोटी छोटी चीजों को पकड़ के बैठ जाते हैं। हस्बैंड ने ऐसा बोल दिया, वाइफ ने ऐसा बोल दिया, दोस्त ने ऐसा बोल दिया, भक्ति वृक्षा में इधर से लड़ाई हो गई, इससे लड़ाई हो गई, उसने ऐसा बोल दिया। अरे यार हम लोग वी आर हेयर फॉर ओनली वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, है ना। वी शुड अंडरस्टैंड दिस इज ए टेम्परेरी प्लेस, है ना। दुखालय तो है ये, लेकिन अशाश्वतम है। अशाश्वतम का मतलब होता है इट्स टेम्परेरी। एंड अगर हम ये बहुत अच्छे से समझ लें कि दिस इज टेम्परेरी, यू नो व्हाट विल हैपन, वी विल बी एक्सट्रीमली पीसफुल, है ना। क्योंकि हमें क्या लगता है, दिस इज माई परमानेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स।
ये मेरा जो घर मैंने बनाया है, ये इटर्निटी तक इस पृथ्वी पर रहने वाला है। और गेस व्हाट, आई विल बी देयर फॉर इटर्निटी एज वेल। That's not true. I am not gonna be here for eternity, and this place is not gonna be here for eternity. मैंने जो चीजें जोड़ी हैं, that's not gonna be there for eternity, है ना। हमारे शास्त्रों में लिखा है हम लोग सब कैसे हैं, एक नदी में जो टहनियाँ होती है ना, टहनियाँ, पेड़ में से टूट के टहनी गिर जाती है, वो नदी में बह रही है, हम लोग एक टहनिए जैसे हैं। टहनियाँ जब कभी कभी एक साथ आ जाती हैं जुड़ के, थोड़ी देर चलती हैं फिर अलग हो जाती हैं, वैसे ही हम लोग हैं। वी आर ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम टुगेदर, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, है ना। चलो ठीक है, अब शिला प्रभुपाद यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि कि अब हम लोग क्या सोच रहे हैं, हमें मून पे जाना है। ठीक है, अब मून पे जाने में अब सोचो, व्हाई डू पीपल वांट टू गो टू मून। उनको लगता है वहां पर जाऊंगा, आई माई सक्सेस डिपेंड्स ऑन इफ आई कैन गो टू मून, है ना। वी हैव बीन टू मून, नाउ व्हाट, आर वी सक्सेसफुल। क्या उखाड़ लिया आपने, मून पे चले गए, आप बताओ अब क्या। कुछ भी नहीं, लिटरली नथिंग, है ना। मून पे अब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वी गोना गो एंड एस्टेब्लिश कॉलोनीज इन मून, है ना। अब नाउ इलॉन मस्क इज सेइंग ही वांट्स टू क्रिएट कॉलोनीज इन मार ऑन मार्स। क्या कर लोगे आप यहाँ पर, कितनी, इस अर्थ को आप संभाल नहीं पाए, अब मार्स में जाओगे वहां भी सेम गंदगी करोगे, कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली वी आर लुकिंग फॉर अ रॉन्ग सॉल्यूशन फॉर अ वी आर लुकिंग फॉर a solution for a problem that is not, that does not exist। उनको क्या लगता है कि जैसे ही हम मार्स में पहुंच जाएंगे विल बी हैप्पी। हाउ। अगर आपको, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हमारी हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस आता कहाँ से है, देन आप कहीं भी जाओ, है ना। देर वॉज ए स्टोरी, देर वॉज दिस पर्सन, वन डे he he was walk उसको ना, he woke up, है ना, he woke up and he was, something was smelling really bad, है ना। तो उसने क्या करा, अपना घर देखा, बुढ़ा था, उसने घर देखा, सारे सब जगह देखा, कुछ नहीं, उसने कहा कहीं ना कहीं से स्मेल आ रही है तो मैं पूरा घर साफ करूंगा। पूरे दिन उसने घर साफ करा, स्मेल नहीं गई। बोले फ्रिज में से आ रही होगी, फ्रिज पूरा साफ कर डाला, नहीं गई। बाथरूम सारे साफ कर डाले, उसको समझ में नहीं आया, बोले सारी खिड़कियां भी खोल दी, फिर भी स्मेल नहीं जा रही है। फिर उसने ना अपने बेटे को फोन करा, ना, कि बेटा यार मेरे पास आया यार, मेरे को, मेरे ना यहाँ पर घर में बहुत भयंकर स्मेल आ रही है, आई कांट टॉलरेट, प्लीज कम। अब वो जहां जहां जाए स्मेल साथ साथ। फिर उसका बेटा आया, उसने बोला क्या हुआ पापा। बोले यार हर जगह स्मेल आ रही है। तो उसने बोला पापा आपने मिरर देखा है, आपके ना पूरे मूंछों पे ना चीज लगी हुई है, कल रात को आपने कुछ चीज का खाया होगा, बिना मुंह धोए सो गए, तो ये चीज जो आपकी मूंछों पे लगी है उसकी स्मेल है। अब वो मूंछों की स्मेल से जब तक आप चीज नहीं निकालोगे तो हमेशा आएगी स्मेल। What he was trying to do is he was trying to solve a problem of smell, but he was doing wrong actions, गलत एक्शन। हम लोगों के साथ क्या है, वी वांट टू बी हैप्पी, बट बिकॉज वी थिंक दैट ओ पृथ्वी में यार हैप्पीनेस नहीं है, लेट्स गो टू मार्स। अरे कैसे, चीज आपकी मूंछों पे ही लगी है भैया, आप मार्स में जाओगे वहां भी यही स्मेल, यही करने, यही होने वाला है। क्योंकि हमारे साथ क्या जा रहा है, हमारे साथ हमारा मन बुद्धि अहंकार और हमारा शरीर सब साथ में जा रहा है। anything everything that is responsible for our misery is going with us, है ना। everything that is responsible for my misery which is मेरा मन बुद्धि अहंकार और मेरा शरीर, यही मेरी प्रॉब्लम है, और यही मेरे साथ जा रही है। अब कहाँ कैसे करोगे आप, आपकी नाक के नीचे चीज लगी हुई है ना। तो वो आपको स्मेल करेगी करेगी, आप कहीं भी जाओ। सो पीपल आर ट्राइंग टू डू द फाइंड द सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स विच एक्चुअली लुकिंग फॉर सॉल्यूशन एट अ रॉन्ग प्लेस, एंड दे ट्राइंग टू सॉल्व अ रॉन्ग प्रॉब्लम। अब उनको क्या लगता है हमारी प्रॉब्लम क्या है, वी आर नॉट एडवांस्ड इनफ। दैट्स नॉट a problem because um, we have advanced so much materially, we have advanced 1600 AD से लगा के अभी तक, we advanced so much, are we happy? No, suicide rates are increasing, people are more angry at each other, people are becoming more and more frustrated, angry, anxiety, और ऐसी ऐसी diseases आ रही हैं जिसका कुछ you couldn't have imagined, people are more violent। क्यों? क्योंकि वी आर एक्चुअली, हम जिस चीज को सोचते हैं ना, वी आर ट्राइंग टू अचीव दिस हैप्पीनेस बिकॉज वी वांट टू क्रिएट डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट, मटेरियल डेवलपमेंट करोगे तो आपको स्पिरिचुअल हैप्पीनेस कैसे मिलेगी, है ना। ये तो वही बात हुई कि यार आई एम ट्राइंग टू, मेरे खुजली, मेरे माथे पे खुजली हो रही है और मैं टेबल को खुजा रहा हूँ,
कैसे खुजली मिटेगी? नहीं मिटेगी, ये ना मेरे को ऐसे करना पड़ेगा। सो आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ सॉल्यूशन विच इज नॉट फिट फॉर द प्रॉब्लम दैट आई हैव। शीला प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि मथुरा, वृंदावन और द्वारिका, दे आर वेरी वेरी फेमस प्लैनेट्स विद इन दिस यूनिवर्स, दे आर एक्चुअल प्लैनेट्स। और उनका एक वर्जन हमारी पृथ्वी पर है, जहाँ पर भगवान ने आके अपनी लीला करी थी। लेकिन ये प्लैनेट्स एक्चुअली इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन वहां पर दीज प्लैनेट्स में इटर्नल लाइफ है। इट इज नॉट लाइक पृथ्वी की यार थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यार भगवान कृष्ण आए, थोड़े दिनों बाद वो बूढ़े हो जाएंगे एंड देन ही विल पास अवे। ऐसा कुछ नहीं है, कृष्णा नेवर डाइज। तो वो जब मथुरा वृंदावन में, जब हम लोग उसको कहते हैं मथुरा और मथुरा, वृंदावन और द्वारका, इन सारी जगह के प्लैनेट्स हैं। आप किस मूड से भगवान को पसंद करते हो, उस मूड के हिसाब से आप उस प्लेनेट पे जाके भगवान की सेवा करते हो। अब शिला प्रभुपाद यहाँ पर एक वो कर रहे हैं कि एक भगवत गीता का श्लोक रेफर कर रहे हैं। कहते हैं कि हिज अट्रैक्टिव फीचर्स एंड स्वीट स्माइल्स गो डीप इनटू आवर हार्ट, एंड वंस इट इज सो डन द लिविंग बीइंग इज एडमिटेड टू किंगडम ऑफ गॉड फ्रॉम वेयर नो वन रिटर्न्स। यत गत्वा न निवर्तन्ते तब तद धाम परमम मम। भगवान कहते हैं यत गत्वा, जहां पर जाने के बाद, न निवर्तते, यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वो जो मेरा धाम है वही परम धाम है। भगवान खुद ही बता रहे हैं भगवत गीता में। और नाइन, देर इज अ श्लोक इन नाइन, शिला प्रभुपाद इसमें कोट कर रहे हैं भगवत गीता 9:20-21। सो भगवत गीता 9:20-21 में ये बताया जा रहा है कि वेयर इज, लेट मी फाइंड इट इन हियर। यू गाइस कैन सी, नो यू कांट सी माय स्क्रीन ना, एक सेकंड, लेट मी ब्रिंग अप द स्क्रीन। वेदावेस 9:20-21, चैप्टर 9। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति। एवं त्रिधर्म मनु प्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। इसके पहले वाले में क्या बोलते हैं, देखो मैं बताता हूँ। इससे पहले वाला जो त्रैविधा मा सोमपा पूत पापा यज्ञे रिष्टवा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते, ते पुण्यमा साध्य सुरेंद्र लोकम अश्रंति देवान् दिवि देव भोगान। Those who study the Vedas and drink some juice, drink the Soma juice, seeking the heavenly planets, worship me indirectly। जो वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं वो मेरे को इनडायरेक्टली वर्शिप कर रहे हैं। Purified and sinful, purified of sinful reaction, they take birth on a pious heavenly planet of Indra where they enjoy the godly delights। लेकिन उसके, ये बहुत अच्छा है, लेकिन नेक्स्ट वाला पढ़ो। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति। When they have thus enjoyed the vast heavenly sense pleasure, the results of their past activities are exhausted। क्षीणे पुण्य, क्षीण, जो आपके जितने पुण्य होते हैं क्षीण हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड में पैसा खत्म हो गया तो आपको 5 स्टार होटल से निकलना पड़ता है, वैसे ही यहाँ पर जैसे ही आपके पुण्य क्रेडिट खत्म हो गए, दे रिटर्न टू दिस नॉर्मल प्लेनेट अगेन। और फिर क्या कहते हैं, एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। दस हु सीक सेंस एंजॉयमेंट बाय adhering to principles of three Vedas अचीव ओनली रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। तभी तो हम लोग क्या करते हैं, वेद वेद पाठ करते हैं। वेद वेद जो पढ़ते हैं ना, उसमें बहुत अच्छा है वेदों पढ़ना, लेकिन वेद क्या करते हैं आपको बताते हैं कि आप क्या करो। अम, सबसे पहले चीज क्या आती है, नहीं, लास्ट दो चीज होती है, मोक्ष। अल्टीमेटली जो वेद आपको मोक्ष तक ले जाते हैं, ठीक है। धर्म, सबसे पहले धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार चीजें वेद आपको बताता है कि यू कैन अटेन ऑल दिस फोर। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म मतलब रिलीजियोसिटी, अर्थ मतलब पैसा, ओपुलेंस, काम मतलब इंद्रिय तृप्ति, और मोक्ष मतलब लिबरेशन फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है, ये चारों कर सकता है। लेकिन जो लिबरेशन है ना, ये मटेरियल वर्ल्ड की जो लिबरेशन है, ये भी अलग अलग तरीके की होती है ना, अलग अलग तरीके की मुक्ति होती है। कोई मुक्ति ऐसी होती है जिसमें हम लोग ब्रह्म ज्योति में डिजोल्व हो जाते हैं और काफी टाइम तक रहते हैं, और फिर वो बहुत मिलियंस ऑफ लाइफ, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद हम लोग वापस या टपक के यहाँ आ जाते हैं पृथ्वी पे। उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद बताते हैं कि
हेवनली प्लैनेट्स में जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम बस वहां पर यह है कि यार अगर अभी मैं कैरोलाइन स्प्रिंग के थ्री थ्री बेडरूम हाउस से इतना अटैच्ड हूँ। इमेजिन मेरे को इंद्रलोक में बड़ा सा बंगला मिल जाएगा, है ना, बड़ा सा बंगला मिल जाएगा, और अमेजिंगली हैंडसम बॉडी मिल जाएगी, ठीक है, और खूब सारे अमेजिंग पार्टनर्स मिल जाएंगे, और खूब सारे अमेजिंग बच्चे मिल जाएंगे, और कोई ना तो मुझे पेन होगा, ना ही मुझे किसी, देर इज नो, ये दर्द वगैरह होता ही नहीं है वहां पर। दर्द नहीं होता, डिप्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है वहां पर, है ना। आप सोचो, जब मैं इतना सब झेलने के बाद बावजूद इतना अटैच्ड हूँ, तो जब मेरे सारी चीजें निकल जाएंगी तो मैं कितना अटैच्ड हो जाऊंगा। सो हेवनली प्लेनेट में जाने से वो नुकसान ज्यादा है ना। इमेजिन, एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ठीक है। अभी राइट नाउ कोई आता है, मुझे मुझे कहता है, हे ब्रिजेश, हेयर योर, टेक सम ड्रग्स, यू विल एंजॉय, मजा आएगा तेरे को, यू विल हैव ए अमेजिंग किक। राइट नाउ मुझे पता है कि हाँ यार मजा आ सकता है इससे, लेकिन मुझे पता है उसके बाद पेन कितना होगा, मुझे पता है ना। तो मैं बोलूंगा मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। ये एक सिनेरियो हो गया। नाउ सेकंड सिनेरियो, उसने मुझे ड्रग्स दे दी, एंड मैंने ले ली, और मैंने 2-3 दिन ले ली लगातार, है ना। अब उसके बाद वो आता है, ब्रिजेश, हेयर यू गो, टेक सम ड्रग्स। मैं क्या बोलूंगा उसको? भगाऊंगा कि बोलूंगा दे दे? बोलूंगा दे दे, तेरे को क्या चाहिए तू बोल। तेरे को मेरा घर चाहिए कैरलाइन स्प्रिंग वाला, ले ले, तेरे को जो चाहिए ले ले, मेरे को बस ड्रग्स दे दे अभी। तो आप सोचो हमारा जो चॉइसेस है वो कैसे बनता है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ अटैच्ड वी आर। अगर हम हेवनली प्लैनेट चले गए, अगर हम स्वर्ग लोक चले गए, तो हम और अटैच हो जाएंगे, और हमारे जो अटैचमेंट ज्यादा बढ़ जाएगा, तो जितना ज्यादा अटैचमेंट बढ़ेगा उतना भगवान से दूर जाएंगे। इसलिए देर इज नो पॉइंट, देर इज नो पॉइंट गोइंग ट्राइंग टू गो टू हेवनली प्लैनेट। अरे पुण्य करो मस्त रहो, पुण्य करो मस्त रहो, ठीक है, लेकिन गोइंग टू हेवनली प्लैनेट इज लाइक ड्रग्स। अल्टीमेटली इट विल पुट यू मोर इनटू अटैचमेंट, और उधर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए क्या करना है, राइट नाउ जितना है उसमें संतुष्ट रहो, है ना, और मेक श्योर दैट वी आर एक्चुअली वर्किंग वर्किंग टुवर्ड्स इटर्नल हैप्पीनेस, नॉट गोइंग टुवर्ड्स हेवनली प्लैनेट्स, है ना। इस चक्कर में नहीं रहना कि यार क्या करें कि हेवनली प्लैनेट चले जाएं ये वो। नो, जस्ट डू योर भक्ति। और भक्ति में अमेजिंग चीज क्या है कि आपने जितना करा है, जितना आप करोगे, आप अगले जन्म से वहीं से शुरू करोगे, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने अभी, जैसे राइट नाउ आई हैव डन माय मास्टर्स, अगर मैं दूसरा जन्म लूंगा तो मैं नहीं बोल सकता अरे आई गॉट ए मास्टर्स डिग्री, गिव मी अ जॉब। नहीं भैया, वापस पढ़ो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, है ना, सी फॉर कैट, एवरीथिंग यू हैव टू डू इट अगेन। कोई क्वालिफिकेशन, कोई मैं जाके बोलूंगा आई एम ए वेरी सक्सेसफुल बैंकर, गिव मी अ जॉब इन द बैंक, नो 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 नो, यू हैव टू गो थ्रू द होल डिग्री अगेन, है ना। लेकिन भक्ति का क्या है, वट एवर यू हैव अचीव्ड इन दिस लाइफ टाइम, इट विल कैरी फॉरवर्ड एज इट इज इन द नेक्स्ट वन। जहां से आप खत्म करोगे वहीं से नेक्स्ट बर्थ में शुरू होगा आपका। इसीलिए देर इज नो डिमिनिशन, है ना। भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि कोई भी भक्त कुछ जो भी करता है उसका कोई नुकसान नहीं होता, उसको वापस वहीं से ही वो शुरू करता है नेक्स्ट बर्थ। तो शिला प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि जो भी लोग, उनको लगता है कि हम लोग हेवनली प्लेनेट जाने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स ऑल यूजलेस फ्यूटाइल अटेम्प्ट, है ना, यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना है, वी शुड नॉट वरी अबाउट, यू नो, बहुत ही सुंदर सुंदर चीजों के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, बहुत ही ऑपुलेंट चीजों के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। सिंपल अगर हम लोग लाइफ रखेंगे, इट विल बी इजियर फॉर अस टू गेट अट्रैक्टेड टू कृष्णा। जितना जितना हम लोग जितना जितना हम लोग मटीरियली डीप उसमें घुसते जाएंगे, मटीरियलिज्म में, उतना उतना हम भगवान कृष्ण से दूर होते जाएंगे, और उतना ही हमें ज्यादा दिक्कत होगी भगवान के पास पहुंचने में। इसलिए राइट नाउ, है ना, अभी क्या करना है, सिर्फ चैंटिंग, मेक श्योर वी चैंट, हमारा मन पे नहीं, वेदर वी लाइक इट और नॉट, वी चैंट एवरी डे, है ना, वी चैंट एवरी डे। और अपन हम लोग क्या करें कि मेक श्योर कि हमारा जो फोकस है, इट इज नॉट ऑन टेम्पोरलिटी, मेक श्योर वी आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन इटर्निटी। तो कहते हैं कि अगर हम लोग हायर टेस्ट के लिए जाएंगे,
तो वी इट विल बी इजियर, द पाथ विल बी इजियर। और अगर हम लोग लोअर टेस्ट ले जाएंगे, अल्टीमेटली वी विल गो बैक होम, बैक टू गॉड, है ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन एक जन्म में जाएं या मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम के बाद जाएं, वो डिपेंड करता है कि हमारे उस पे। प्रॉब्लम ये है कि बार बार जन्म लेने में, क्योंकि ये कलयुग है, इट विल बिकम वर्स्ट एंड वर्स्ट एंड वर्स्ट। बाय द टाइम कली दे विल कम एंड किल एवरीवन, पीपल विल बी ईटिंग पीपल, है ना। um, है ना, पेरेंट्स विल बी ईटिंग देयर किड्स आउट ऑफ हंगर, है ना। देयर विल बी नो मर्सी, देर विल बी नो मर्सी, देर विल बी नो शौचम, देर विल बी नो सत्यम, कुछ भी नहीं बचेगा, देर इज नथिंग विल रिमेन ऑन दिस प्लेनेट, है ना। और हमारी जो भक्ति की हम लोग सोच रहे हैं ना कि ओ नो 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 नो, हम लोगों को कुछ नहीं होगा, हम लोग भक्ति के घर में पैदा होंगे, हाँ हो सकते होंगे भक्ति के घर में पैदा। लेकिन अगर ये जो भक्ति है सिर्फ 10,000 साल तक की है, अगर हम लोग इसके बाद कहीं सपोज हम लोग हेवनली प्लेनेट चले गए, 3 दिन के लिए भी गए, ये 10,000 साल तो निकल जाएंगे ना 3 दिन में ही। क्योंकि यहाँ का तो 10,000 साल निकल जाएंगे, 4-5 दिन वहां रुके हम लोग, 10,000 साल निकल गए, अगर हमें वापस अर्थ में आना पड़ा तो हम ऐसी जगह आएंगे जहां पर देर विल बी नो भक्ति, जीरो। एंड बिकॉज देर विल बी नो भक्ति, गॉन। हरे कृष्ण माता जी, रुचिता माता जी, यू हैव अ क्वेश्चन? यस प्रभु जी। प्रभु जी, यस। ऑन व्हाट बेसिस डू वी गेट हेवनली प्लैनेट्स? अगर हम डिजायर कर रहे हैं इसलिए, या कर्मा है? और अगर हम नहीं भी चाहते हैं हेवनली प्लैनेट्स, हम भक्ति ही कर रहे हैं, तो कैन वी इंश्योर कि हम वहाँ नहीं जाएंगे? मतलब कैसे ये होता है? ये गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। एक्चुअली हेवनली प्लैनेट में जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ ये है कि वी लिव ए पायस लाइफ, ठीक है। और अगर हमको देखा जाए तो हमारी पायस लाइफ कैसी है, हमारी पायस लाइफ है, आर पायस लाइफ मीन्स दैट हम लोगों ने अच्छे कर्म करे हैं, हमेशा लोगों का भला करा है, भूखों को खाना खिलाया है, ये करा है, दान करा है, धर्म करा है, जो भी है ना। वी विल गो गो टू हेवनली प्लैनेट। लेकिन अगर हम भक्त बनेंगे तो जैसे ही हम भक्त बनते हैं हमारे पास ये दूसरी क्वालिटीज ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, है ना। दान धर्म करना अपने आप ही होएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देर इज ए पॉसिबिलिटी, शिला प्रभुपाद को किसी ने पूछा था कि प्रभुपाद व्हाट विल हैपन विद ऑल दीज इस्कॉन डिवोटीज, वुड दे गो बैक होम, बैक टू गॉडेड? उन्होंने बोला कि some of them will go back home, back to Godhead, and rest will end up in um, स्वर्गलोका। नाउ लेकिन शिला प्रभुपाद ने ये भी बोला कि इफ यू टेक शेल्टर ऑफ ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, है ना, अगर आप अपना इनिशिएशन हो जाता है आपका, अगर आपने गुरु दीक्षा ले ली है ना, और स्पेसिफिकली बोनाफाइड गुरु से आपने दीक्षा ले ली है, तो गुरु प्रॉमिस करता है ही विल टेक यू बैक होम, बैक टू गॉड। और फिर गुरु इट्स गुरु रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर गुरु एंड यू विल गो बैक होम, बैक टू गॉड। वेदर यू हैव टू इन बिटवीन यू हैव टू गो टू heavenly planet, even if you want it don't want it, doesn't really matter, because your guru's Ashirwad is there. So even if you go to heavenly planet in between, you will not be attached too much, because your guru will drag you from there as well. And he will, प्रभु, when आई you, एम नॉट कन्विंस कि गुरु हमें, मतलब आप डेफिनेटली यू हैव मोर एक्सपीरियंस, बट मुझे कन्विक्शन नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं गुरु बनने के बाद भी दे आर डूइंग सच एक्टिविटीज, उनको देख के लगता नहीं है। मतलब हाँ यू नो, नहीं, नो वन टू जज, बट स्टिल। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज गुरुज, टू बी ऑनेस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट बोनाफाइड गुरुज, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट बोनाफाइड गुरुज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो सो कॉल्ड गुरु है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट गुरु जो एक्चुअली ये चार परम जो वैष्णव परंपराज में आ रहे हैं ना, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। वो जो चार जो रिलीजियस सेक्ट्स हैं, सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उनके अलावा कहीं पर भी, जैसे श्री संप्रदाय हो गया, है ना, संप्रदाय हो गया, और अपना कुमार संप्रदाय हो गया, और हमारा ये ब्रह्म संप्रदाय जिससे हम बिलोंग करते हैं, सिर्फ ये चार संप्रदाय हैं जो बोनाफाइड हैं। इसके अलावा कोई भी है, दे विल, उनके उनके वहां से जो गुरु हैं, कोई भी संप्रदाय के गुरु हैं, इन चार चार संप्रदायों के अलावा कहीं से भी कोई गुरु हैं, दे आर एक्चुअली नॉट बोनाफाइड, दे आर नॉट या बोनाफाइड। दैट्स राइट प्रभु जी, बट अमंग दोज आल्सो देयर कुड बी सच पीपल ना, जो इन चार संप्रदाय में है, जो इन हाँ चार संप्रदाय में है, उनमें हाँ, ऐसे भक्त होंगे जो सब ऐसे कुछ गुरु करते होंगे, हैं, जो बिना, नहीं, जैसे भक्त हैं, नहीं नॉट गुरु, भक्त, हाँ गुरु हाँ हैव नो हाँ क्वेश्चन, आई एम हाँ टॉकिंग अबाउट पीपल हाँ हाँ हु आर लाइक फॉलोअर्स। हाँ
तो वो तो कर ही सकते हैं ना कुछ भी, जरूरी नहीं लेकिन दे आर डूइंग हाँ, ऑल इफ द राइचियस एक्टिविटीज नहीं, या बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, बिल्कुल ठीक फॉलो बोल कर रहे हो, रहे। तो दे ऑल हैव टू इनकर देयर कर्मास एनीवे। लेकिन क्या होगा, इफ दे हैव टेकन शेल्टर ऑफ ए गुरु, है ना, एंड इफ दे आर फॉलोइंग गुरुज एडवाइस, है ना, हम्म। डजंट मैटर वेयर दे आर, दे विल गो बैक। क्योंकि जो लोग गुरु की एडवाइस नहीं मान रहे हैं, दे आर एक्चुअली, उनकी भक्ति लता बीज तो वैसे ही गया, क्योंकि दैट्स द फर्स्ट अपराध, लाइक सेकंड अपराध टू। तो प्रभु सॉरी, शेल्टर लेना इज नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इम्पोर्टेंट इज फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। हाँ, दिस इज एग्जैक्टली राइट। कई लोगों को लगता है ना, एक बार से- ले लिया हाँ, क्योंकि इंस्ट्रक्शन तो हो मुझे गया, ये दैट्स बात नॉट नहीं ट्रू। समझ में आती कि शेल्टर बस ले लिया हो गया, ऐसा नहीं, यू हैव टू नहीं नहीं फॉलो। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, देर इज अनदर लेयर टू इट जो हम लोगों को समझनी चाहिए। व्हेन यू टेक शेल्टर ऑफ गुरु ना, then guru will give you, subtly guru will give you empowerment to follow his instruction as well. So there हम्म। is a lot of strength that comes with guru's attachment. When you get connected to a guru, हम्म। even sometimes नहीं, most of the times you are not qualified to become their disciple. तो वो लोग क्या हम्म। करते हैं, when they accept us as their disciple, they give us that strength to follow their instructions. फिर भी क्या होता है, हम लोग कई बार अपना गलत चॉइस कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया को, फिर लेकिन गुरु विल स्टिल कीप ऑन एम्पावरिंग यू टू कीप कमिंग बैक टू हिज इंस्ट्रक्शंस, कीप कमिंग बैक। अगर हम लोग इस जन्म में गुरु का पूरा आदर नहीं कर पाए, फॉलो नहीं कर पाए, this Guru Tattva will come again in the next lifetime and start instructing us again and again and again and again and again. And he will keep instructing us until Janm after Janam, until we go back home, back to Godhead. And this is the promise of the Lord. तो इसमें हम लोगों का कुछ वो नहीं है। गुरु के इंस्ट्रक्शन के साथ गुरु की एम्पावरमेंट भी आती है। हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फरारी कार है, गुरु ने मेरे को फरारी दे दी है, बोला यहाँ से जा, वो रहा तेरा गोलोक वृंदावन, मैंने फरारी में बैठा, ठीक है। अब मेरी क्या चॉइस है, मेरी चॉइस ये है कि मैं एक्सीलेटर पे पैर रखूं या ब्रेक पे पैर रखूं। कई बार क्या होता है, मोस्ट ऑफ द डिवोटीज इंक्लूडिंग मी, हम लोग क्या करते हैं, एक्सीलेटर पे भी पैर रख रखा है, उस ब्रेक पे भी पैर रख रखा है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, गाड़ी चलती नहीं उस हिसाब से जिस जैसे चलनी चाहिए, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, गुरु ने बोल दिया है कि आई विल टेक यू बैक, ही विल टेक अस बैक। लेकिन क्या होता है, जो इस इंस्ट्रक्शन का, जो इस नॉलेज का मिसयूज करने की कोशिश करता है, उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तो व्हाट्स, इट इज नॉट दिस लाइफ टाइम, इट कैन बी मेनी लाइफ टाइम्स। मैनी लाइफ टाइम्स, यस, मैनी मैनी मैनी, कई बार मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स। और मैं आपको ऑनेस्टली बता देता हूँ कि देखो, इस ग्रुप में आई डोंट नो, लेकिन मेरे को मेरा मेरा तो थोड़ा पता है कि आई थिंक आई हैव बीन ऑन दिस जर्नी फॉर मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स, है ना। और somehow or other आई हैव नॉट learnt माई लेसन। तो यहाँ पर भी नाउ आई हैव ए गुरु, एंड समटाइम्स मैं उनकी भी इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पाता हूँ। एंड दैट इज वाई द वे आई एम प्रोग्रेसिंग इन भक्ति इज नॉट एज फास्ट एज व्हाट माई गुरु वुड हैव एक्सपेक्टेड। लेकिन मुझे एक बात पता है कि मेरी सिंसेरिटी ये है कि आई हैव फुल फेथ इन माई गुरु, and I don't want to use my inability as an excuse to say, yaar, my Guru Maharaj is like, is he won't be able to take me back home, back to Godhead because I'm so patit. No, I need to have this firm belief, no matter how patit I am, my Guru Maharaj has all the strength, all the power to take me back home, to back to Godhead within this lifetime. Now, ये जो कन्विक्शन अगर मेरे अंदर जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही इजी मेरे लिए उनको फॉलो करना होगा, और उतना ही करेंगे। इजीली आई कैन गो बैक होम, बैक टू गॉड। राइट। But yes, you need to have a bona fide guru. And if it means that I have to go to heavenly planets, then he will, even their guru will protect me. है ना, तो प्रभु ऐसा होता है इन योर प्रीवियस लाइफ टाइम यू हैड गुरु बट दिस लाइफ टाइम यू डोंट गेट, ऐसा नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यू विल ऐसा, डेफिनेटली गेट अ गुरु। यस, 100%। क्योंकि जो एक्चुअली अभी रिसेंट लेक्चर में एक वो क्या नाम है अपने, रमय स्वामी महाराज जो है ना, टेम्पल में अभी क्लास दी थी उन्होंने, 2-3 क्लासेस, उसमें वो बता रहे थे कि देखो, कई लोग को लगता है कि माय सेम गुरु विल कम एंड हेल्प मी, सेम गुरु विल कम। नो, गुरु गुरु कैन तत्व। कम एनी टाइम, गुरु तत्व, हाँ, गुरु कैन हम्म। कम इन एनी शेप और फॉर्म, एंड गुरु विल एक्चुअली कीप गाइडिंग यू। ही कैन कम एज ए फिजिकल गुरु, है ना, फिजिकल गुरु आएंगे आएंगे, एंड ही कैन एक्चुअली कम एज ए चैत्य गुरु, ही विल एक्चुअली सिट
next to Paramatma and guide you kind of stuff. Chaitya Guru तो खैर हमारे साथ हमेशा ही रहते हैं. And then what he will do is sometimes he will actually come in terms of our kids, come as a, Mm-hmm. but you will, that person, that Guru Tattva will actually always guide you towards taking shelter of a bona fide Guru. So that Guru Tattva will force you, push you, and mold you to go towards corner कर देते हैं कई बार, है ना. And I've heard these stories where somebody didn't want you to take shelter of one of the gurus, and he got cornered. Literally, he had, पता नहीं उसको क्या हुआ. He just and he called it as a, like, मेरे को समझ में नहीं आया कि why I'm taking initiation from this guru when मेरा और इनका कोई मैच ही नहीं करता. No wavelength gets matched. Mm-hmm. But what happened is after that, it was not about wavelength. It's about going back, एक ही से goal, going back home, back to Godhead. So it's not about energy level match कर रहा नहीं कर रहा है. That should not be criteria of how we choose guru. Guru is a guru tattva. Guru means, Actually, Guru is choosing us. yes, that is correct. Actually, Mm. Guru chooses us. We choose guru, but both of these things come from the mercy of Krishna. है ना. हाँ. Mm. और जो और गुरु, मर्सी ऑफ कृष्णा से गुरु मिलता है, गुरु की मर्सी से कृष्णा का लोटस फीट मिलता है. इट्स बोथ गोज हैंड इन हैंड. So, Prabhu, is Guru Tattva, we are all blessed with that Guru Tattva? Yes, we all have, like, the because Guru Tattva is like a mercy of Lord. Mercy of Lord Mm. comes in the form of Guru Tattva, and Bhagwan is never partial, है ना. Mm. Bhagwan is partially impartial. That means Exactly. what he will do is he will give everything to everyone. Everybody has a choice to get into bhakti. There is no qualification for bhakti except for a desire to get into bhakti. There is no other Mm. qualification, है ना. So that is for everyone. That in that way he is very nirpeksh. He is very, very, very impartial. But whoever chooses him over other things, he become partial towards them. Does it make sense? So Mm. सबको उन्होंने opportunity दे रखी है, लेकिन जो, Basically, make a choice. And because he doesn't want to force us in making that choice. So when people desire कि भगवान की मेरे को भक्ति करनी है, then Krishna will automatically take charge of their lives. And sometimes you will see that once you start chanting, lot of things will start happening on its own, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो रहा है यार, how is it happening. Sometimes you Mm. will achieve something that you would never thought you would achieve, something that you will do which will, like, or some things in your family someone will do, you're like, oh my goodness, ये तो possible ही नहीं था. Where is it coming from? It's coming from Krishna's mercy, because what he's doing is now he's taking charge of your life. Mm. लेकिन there is a thing which is very, very important for us to understand. Krishna is a reciprocal God. He reciprocates based on how much we are surrendering, बिकॉज ही डजंट वांट टू फोर्स. हम मुझे मैंने कृष्णा को बोला जैसे होता है ना कि आई डोंट नो, मे बी इट्स अ बैड एग्जांपल, बट बट व्हेन यू प्ले अ गेम वेयर यू हैव टू पुट थ्री कार्ड्स ऑन द टेबल, द ओपोनेंट हैज टू पुट थ्री कार्ड्स ऑन द टेबल, है ना. Mm. कृष्णा क्या करते हैं, इफ यू पुट थ्री कार्ड्स ऑन द टेबल, कृष्णा विल पुट थ्री कार्ड्स ऑन द टेबल, बट कृष्णा's थ्री कार्ड विल बी मोर देन 3 million कार्ड्स ऑफ आर्स, है ना. लेकिन क्या करेंगे, Mm. कृष्णा इज ओनली रेसिप्रोकेटिंग हाउ मच यू आर सरेंडरिंग ऑन टू हिम. Somebody wants, I don't want to do anything with Krishna, मुझे कृष्णा से कुछ लेना देना नहीं है, तो भगवान बोलेंगे ठीक है बेटा, मैं तेरी लाइफ से निकल जाता हूँ. So what he will do is he will get out of that person's life, है ना. Mm. But what will happen then, शिला प्रभुपाद जैसे लोग आ जाएंगे, वो कहेंगे नहीं, पतित पावन कितने भी पतित हो, आई विल गेट गो टेक यू बैक टू आर. एंड व्हेन Mm. शिला प्रभुपाद जैसे लोग आके प्रॉमिस करते हैं ना, आई विल टेक यू बैक होम बैक टू गॉड हेड, देन कृष्णा सेड ओके, दैट्स फाइन. इसकी चॉइस थी, इसने मना कर दिया था, नाउ बिकॉज यूर ए डिवोटी, यू आर चूजिंग हिम, आई टेक हिम बैक. लेकिन उसमें भी क्या होगा, गुरु, like Srila Prabhupada, will change the mind of that person in a way that that person start putting his cards on the table. He will start surrendering Mm. to Krishna, and then Krishna will reciprocate, and then we will go back to water. Krishna बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम. Right. प्रपद्यन्ते, जिस लेवल का सरेंडर आप दोगे, Surrender. Mm. somebody wants to give all of it, then Krishna says, you take all of me, है ना. When Bali Maharaj said, Krishna, you put your third foot on my head, I am surrendering myself to you, my whole being to you. That way Krishna became his servant,
है ना, बलि महाराज के सर्वेंट बन गए कृष्णा, बिकॉज ही, उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। दिस इज हाउ ही रेसिप्रोकेट्स। हम, मेरा समर्पण ऐसा है कि आई एम गिविंग ऑल ऑफ मी टू यू कृष्णा, कृष्णा विल से यू कैन टेक ऑल ऑफ मी। तो मुझे आई अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट बट रियलाइज नहीं होता, लाइक आई रियली वांट टू रियलाइज इट। हाउ डू यू गेट दैट 100% सरेंडर? 100% सरेंडर एक्चुअली क्या है, इट्स नॉट अबाउट 100% सरेंडर। अगर हमें ये देखना है कि हमारे पास कितना सरेंडर है, तो जस्ट लुक एट हाउ फियरफुल वी लिव आवर लाइव्स, है ना। अगर हमें हम्म। जज करना है ना कि हम लोग कितना सरेंडर्ड हैं, the person who is fully surrendered will have no fear whatsoever. Like when I say no fear, literally no fear. प्रहलाद महाराज, when he was falling माउंटेन से उनको फेंका था, तो it is said that he was chanting the name of the Lord exactly 1 millimeter away from the ground, भी वो उतना ही कर रहे थे। ऐसा नहीं कि आंख बंद कर ली अरे लगने वाली है, ऐसा नहीं। he was just chanting because he was extremely fearless। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, अगर भगवान चाहते हैं मैं मरूंगा तो आई नोबडी कैन सेव मी, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्णा राखे के। और अगर भगवान मुझे बचाना चाहेंगे तो ये फॉल तो क्या, कुछ भी नहीं मेरा कुछ कर सकता। दैट फियरलेसनेस अगर हमारे पास है, देन वी विल नो हाउ मच सरेंडर वी हैव। समटाइम्स व्हेन आई एम सेइंग दिस थिंग, आई एम बिकमिंग अ लिटिल बिट मोर फियरलेस राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि मैं ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है, और मैं भगवान हम्म। के बारे में सोच रहा हूँ कि यार भगवान, ये आई वांट टू सरेंडर यू मोर। बट क्या होता है, जैसे ही हम व्हेन वी गो बैक टू आवर नॉर्मल लाइफ, देन वी फॉरगेट कि यार भगवान इज सुप्रीम कंट्रोलर। वी थिंक नो नो नो, आई एम द कंट्रोलर, आई नीड टू हम्म। कंट्रोल एवरीथिंग। एंड जितना हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना हम वापस अपने कार्ड्स उठा रहे हैं, जो हमने रखे थे ना हमने वापस उठा लिए। हमने उठा लिए, भगवान भी उठा लेते हैं अपने, है ना, क्योंकि हम्म। ये था हम प्रपद्यन थे। तो अगर हमें देखना है कि हमें कितना, अगर 100% सरेंडर के चक्कर में हमें नहीं रहना चाहिए, हमें किसके चक्कर में रहना चाहिए, एम आई सरेंडरिंग माई सेल्फ, जैसे जितना मैंने कल सरेंडर था, क्या आज मेरा उससे ज्यादा सरेंडर है थोड़ा सा। दैट्स हाउ वी शुड वरी अबाउट। कहते हैं ना कि 1 डे के चक्कर में मत रहो, डे 1 के चक्कर में रहो। टुडे इज माई डे 1। Instead of thinking 1 day I will do 100% surrender, no. Today is my day 1 to give 1% surrender to Krishna. And tomorrow I'm gonna ace, I'm gonna do better. The third day I'm gonna start doing better. Now कोई पूछेगा कि how do you do better? Very simple. You chant 16 rounds attentively, and you read Srimad Bhagavatam every day. Don't do any अपराध. You will have everything that you need. आपका surrender अपने आप बढ़ता जाएगा, fearlessness बढ़ता जाएगा। You know, you speak to these brahmacharis, they are like lions. They have no fear. हरिनाम क्या नाम है उनका, हरिनाम आनंद प्रभु हैं। वो जब वहां के लिए निकलते हैं, क्या बोलते हैं, कीर्तन करने के लिए पार्टी निकलती है, नगर संकीर्तन करने के लिए, दे डिड नॉट नो कि खाना कहाँ से आएगा, लंच कहाँ से आएगा। उनसे पूछा भैया क्या, क्यों नहीं, बोले नहीं कृष्णा है ना, ही एंड दे नेवर हैव स्लेप्ट एम्प्टी एम्प्टी स्टमक, नेवर। लेकिन उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, दे आर सो फियरलेस। उनको लगता है कि भगवान, अगर भगवान को हमें खाना देना होगा ना, ही विल प्रोवाइड अस, एंड इफ ही डजंट वांट टू प्रोवाइड अस, दैट्स ओके विद मी एज वेल। ऐसा नहीं कि अटैच नहीं है कि यार भगवान को मैंने सरेंडर करा है, भगवान को देना ही पड़ेगा खाना, ऐसे भी नहीं है वो लोग। दे आर फुली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, एंड जितना आप डिपेंड रहोगे कृष्णा, यू विल बी फियरलेस। लेकिन उसमें भी ये होता है, सम वी डोंट वांट टू बी लाइक, यू नो व्हाट, कल से मैं जॉब पे नहीं जाऊंगा, आई विल डिपेंड ऑन कृष्णा, कि भाई मेरे अकाउंट में जितने पैसे आ रहे हैं आते रहे, मेरा मॉर्गेज भर जाएगा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई एम डिपेंडिंग ऑन कृष्णा। दैट्स नॉट व्हाट कृष्णा इज सेइंग। डिपेंडिंग ऑन कृष्णा मीन्स कि आई विल डू माई बेस्ट, बट उसके बाद जो मुझे मिल रहा है ना, मैं हंसते हंसते ले लूंगा। भगवान ने ये झापड़ लगा दिया, कोई बात नहीं, थैंक यू भगवान, और क्या करना है बोलो। और अगर हमारे साथ क्या है, एक थप्पड़ लगा दिया, हम लोग बोलते जाओ, बात ही नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ अपने, आई एम गोना गो एंड लुक फॉर लक्ष्मी देवी, गणेश जी, भगवान ने थप्पड़ मार दिया, है ना। हम लोग वी आर नॉट intelligent enough to understand how Krishna works. But if we can accept everything that is happening in our life as the grace of the Lord, then Krishna will look at that as a surrender. क्योंकि he will know कि you know what, ये बंदा क्या है, he understood that I'm in control, and he is happy that I'm in control, then I will take control of this person's life. Does it make sense? अमेजिंग प्रभु जी। प्रभु जी, एक और एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब आई एम हम्म। मोर इंक्विजिटिव टू नो अबाउट द्वारका मथुरा गोकुला प्लैनेट्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। हम्म। तो उसमें आप किस बेसिस पे सर्व करते हो? व्हाट इज द So डिफरेंस? हाउ डू वी गेट टू नो?
वेरी वेरी सिंपल डिफरेंस है कि द्वारका और मथुरा, यहाँ का जो, यहाँ पे जो कृष्णा है, दे एवरीबडी लुक्स अप टू देम एज ए प्रिंस और ए किंग, है ना। है हम्म। ना, द्वारका में ही वॉज ए किंग, मथुरा में ही वॉज ए प्रिंस। ठीक है। सो दे लुक एट, सो प्रिंस, प्रिंसली पर्सन कैसा होता है, थोड़ा तन के चलेगा, always be loaded with jewelry and stuff. Nobody can come to a prince and put their hand in the है ना, उनके गले में हाथ नहीं डालेगा कोई, है ना, कोई उनसे मस्खरी नहीं करेगा, है ना। सो दैट्स ए प्रिंसली थिंग। और जब द्वारका की बात आती है तो द्वारका में ही इज ए किंग, किंग से तो और भी हम्म। लोग दूर ही। अब जैसे किंग आया तो लोग किंग के पास नहीं जाते हैं, थोड़ा दूर हो जाते हैं कि यार देखो, आई एम ए वेरी स्मॉल पर्सन, ही इज ए बिग बिग किंग। सो ये जिनका ये भाव होता है भगवान को लेके कि यार भगवान इज सुप्रीम, आई जस्ट वांट टू गिव हिम ऑ एंड रेवरेंस, दे गो टू मथुरा और हम्म। दूसरे जो प्लैनेट्स होते हैं जिसमें नारायण के रूप में भगवान रहते हैं, बैकुंठा। लेकिन द पीपल who have higher rasas with Krishna, they want to have Krishna as a brother, as a friend, as a lover, or as a son, है ना, एज ए अंकल, उनका पर्सनल रिलेशनशिप जिसको चाहिए, है ना, वो जाते हैं गोलोक वृंदावन। दैट इज द डिफरेंस, द मूड इज डिफरेंट, द डिवोटीज हु आर देयर serving in uh, serving in all the Vaikuntha planet in Mathura and Dwaraka, they look up to Krishna as Supreme Personality of Godhead. In Vrindavan, nobody thinks Krishna is supreme. They think Krishna is l- Krishna is the love of my life. सारी गोपियां सोचती हैं ये छोटा बच्चा मेरा, ये मेरा है। सारे गाय सोचती है कृष्णा इज माइन, है ना, सारे Maybe जग। what sets that mood? Like, is it predestined या आप नो 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 इस नो नो, इट्स नॉट, नथिंग इज, बदलता रहता है? एक्चुअली इट्स नॉट, इट्स ऑनेस्टली हम सब, all of us we are actually coming from um, either Vaikuंठा और गोलोक वृंदावन। वी हैव आवर एक्चुअल पोजीशन भगवान के उसमें। हम्म। ठीक है। और हम लोग वो पोजीशन जो हमारी है हम उसको चेंज नहीं कर सकते। नहीं इफ कर आई एम ए सकते। काउ इन वृंदावन, आई कांट गो वैन, नहीं नहीं मेरे को नहीं जाना, आई वांट टू बी ए तितली नाउ, बहुत हो गया जमीन पे, आई एम गोना फ्लाई नाउ, नो नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। यू विल गो बैक एज काउ। द थिंग इज, बट अब कोई बोलेगा यार नहीं यार मेरे को तो नहीं बनना काउ, मेरे को तो आई वांट टू बी एज फ्रेंड, है ना। बट द थिंग इज, जितना भगवान के फ्रेंड इंजॉय करते हैं ना, उतना ही वो काव इंजॉय करती है, उतना ही वो भंवरा जो भगवान के आजू बाजू में घूमता है वो भी उतना ही एंजॉय करता है। और जो तितली और जो घास है जो अपनी जगह पर ही है, वो साल में एक बार कृष्णा उन पे पैर रखते हैं, वो घास भी उतनी ही खुश रहती है जितनी सारी गोपियां खुश रहती हैं। दिस इज द डिफरेंस। The happiness quotient of all of these people in Vrindavan is exactly the same. Actually, Madhurya Ras is the highest, but in terms of pleasure, in bliss, they are all in bliss. है ना। हम्म। सो वी डू हैव आर स्पेसिफिक सेवा जो हम लोग कर रहे थे भगवान की, वेदर वी वर इन बैकुंठा और वेदर वी वर इन गोलोक वृंदावन, हमारी एक स्पेसिफिक सेवा थी। और जब से हम वो सेवा छोड़ के यहाँ आए हैं, नो वन इज डूइंग दैट सेवा। सो कृष्णा इज वेटिंग फॉर अस टू गो बैक एंड स्टार्ट दैट सेवा अगेन, है ना। और जब तक हम यहाँ बैठे हैं वहाँ कोई नहीं कर रहा सेवा, भगवान विल नॉट गिव एनी वन एल्स दैट जॉब, बिकॉज दैट्स फॉर Right. रुचिता, दिस इज योर जॉब, आई विल वेट फॉर यू एज लॉन्ग एज यू टेक, प्लीज बट प्लीज डोंट मेक मी वेट, ये बोलते हैं कृष्ण, है ना। सो everyone, all of us will go back home, back to Godhead for sure. But the हम्म। point is how quickly we want to go there, है ना। कितना हम लोगों में कहते हैं ना कि देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। तो हमें अब देखना है कि हमारे अंदर कितना जोर है, हाउ desperate we are and how much effort we are willing to put in, and we will definitely go. Time is the only thing that is separating us from Krishna right now, and that depends on हमारा खुद का endeavor. हम्म। Very nice questions, Ruchita Mataji. It is very nice क्योंकि when you ask these questions, we can go deeper into this, है ना? So, Vijay, one last thing. No हम्म। question. Just want हाँ, to share something really amazing. please. Last Sunday, I went for my class, Pilates class now. तो वहाँ पे they put on this music, and that हम्म। day it's like more of a stretch and थोड़ा relaxing रहता है class. तो they put some instrumental and mostly Indian कभी कभी लगा देते हैं. And last class में थोड़ा वो काली दुर्गे मंत्रा कुछ आने लग गया. So I हाँ, told my instructor, you must listen to one of the mantras at the end of the class. हाँ, It's Janvi Harrison. You must listen to her. She's amazing.
And she हाँ। actually put it on. I felt such an achievement. मेरे को लगा finally Krishna is here. ओह वाह, सो आपके उसमें उसने चलाया, एवरीबडी लिसन टू इट। Not everybody, actually, ओह most of the people were out of the area, but at least उस जगह पे कृष्णा का नाम तो है. वाह, वेरी नाइस। दैट इज So प्रीचिंग एक्चुअली, व्हेन यू I एक्चुअली, felt so good that moment. I can't tell you. वेरी नाइस, क्योंकि दिस इज हाउ कृष्णा रेसिप्रोकेट्स ना। क्योंकि Yeah. हम लोग जब व्हेन वी आर इंटरेस्टेड इन गिविंग कृष्णा टू पीपल ना, कृष्णा बिकम्स वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। Mm. So she said she might put it in the next session जब भी. ब्यूटीफुल, वेरी तो नाइस। अगर At कृष्णा least का you have नाम given her अगर, the highest taste. You हाँ. higher taste. You've given her the higher taste. So very nice. Mm. Beautiful. And we should keep doing that. That's really lovely. That's called Thank you. preaching. Very nice. Mm. Okay. It's 8:14. Granth Raj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila ये जय Prabhupada ki Thank you, ये jai. जय। Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे Thank you very कृष्णा, much. हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा Thank you. जी, हरे कृष्णा। Thank you. थैंक यू चिंटू Hare. प्रभु आज जी। Hare. पहली बार मैंने मंडे की क्लास ज्वाइन की, बाई चांस देख लिया रुचिता का मैसेज, हाँ, क्योंकि बहुत फोन अच्छा। चलो। कभी मेरे हाथ में पति का फोन होता है तो कभी मेरे पास अपना फोन होता है। लकीली आज उस समय मेरा अपना फोन था तो देखा, तो मैंने कहा चलो ज्वाइन करती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू आंटी जी। हरे कृष्णा चलो, प्रभु, हरे कृष्णा। हरे श्रील प्रभुपाद की कृष्ण जय। जय। हरे कृष्णा।